Questions, comments, concerns आप लोग, technical, non-technical, anything we have discussed जो मैंने कर रहे थे quiz की बात करें कोई चीज़ before going to start the revision. All is well. Okay, अल्लाह करे इतना आपको सब कुछ लिखी चीज़ें बिल्कुल असबर में एहतियातन revision का section start. Okay, जी. We were discussing the subject electric. We are discussing electric circuit analysis 2, and by 2 we mean that this time we are going to analyze the electric circuit where AC signals are working. Okay, we have a circuit in which the signal is alternating. And the most appropriate signal of this kind is sinusoid. Okay, so we start with the revision of the introduction of sinusoids, and immediately we find out that instead of dealing with the sinusoids, it's better to deal with the phasors. Okay, we start discussing the phasors, and that was very easy to convert from the time domain to frequency domain, or from sinusoids to the phasor notation. Then you see some magics of that phasor conversion and phasor notation. The first magic was the easiness of differential and integral equations, or an equation which includes derivative and integration. As we encountered in the last in ECO1, last chapters of ECO1, 7th chapter, 6th chapter. Where the circuit was RLC, और उस सर्किट की जो आप इक्वेशन बनाते हैं उस इक्वेशन में इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म्स जो हैं वो फंक्शन की आ जाती हैं और उसको फिर सॉल्व करने का एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकली थोड़ा लेंथी प्रोसेस था. And we see if we use phasors, then those differential and integral equations are behave like your simple linear equations, as it was evident in the quiz and the last lecture's example as well. And there was a linear equation to take the voltage or current term out, and you could handle the problem similar to a linear equation, which makes your analytical life very easy. Okay. And then at the last step, the last topic we discussed what was the last topic? Electric components. Yes. Good. If you have a electric component like resistor, capacitor, inductor, then how they are related in terms of voltage and current. Okay. हमारा बहुत पुराना इशू के फॉर एग्जांपल आपके पास एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है पैसिव, एक पैसिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, और इसमें से अगर करंट फ्लो करवा दिया आपने, इसके क्रॉस वोल्टेज produce हो गया, या vice versa is also true. If there is a voltage across any component, whatsoever the component is, resistor, it could be capacitor, inductor. As soon as there was a potential difference across that component, voltage जैसे ही इसमें develop हुआ, तो इसमें से current flow करना शुरू हो गया, ठीक है. और बाकी सारी हमारी एनालिसिस की लाइफ इसी के गिर्द घूमना शुरू हो गई कि निकालना है वोल्टेज है, करंट निकालना है, या दोनों ही नहीं है तो कैसे निकालना है, उसके मेथड्स वगैरह हमने सीखना शुरू. और अब हम जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ चुके हैं, तो हम एसी सर्किट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने कहा कि फॉर एग्जांपल अगर यही वाला कंपोनेंट आपका कोई रेजिस्टर है, अगर आप इसको टाइम डोमेन की बजाय फ्रीक्वेंसी डोमेन में फेजर्स को इस्तेमाल करते हुए डिस्कशंस कर रहे हैं, ठीक है, वो हमने पहले से ये रिप्रेजेंटेशन सॉलिड, हाँ सॉलिड, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन की हमने जस्ट रिप्रेजेंटेशन दी है ना, वो ये हमने एक टिल्ट सा कर दिया है, ठीक है, आपके बुक वाले ने उसको बोल्ड कर दिया, तो हम उसको बोल्ड बार-बार लिख सकते हैं, तो हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर, ठीक है. तो अगर V और I के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा टिल्टेड वो है तो उसका मतलब हम फेजर्स की बात. So last time you see that if there is a resistor and there is a phasor voltage or current flowing in that resistor, then
this voltage and this current will be in phase. Okay, जहां पर इस वोल्टेज का मैक्सिमा होगा वहीं पर इस करंट का भी मैक्सिमा होगा। मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, ठीक, या जहां पर इस वोल्टेज का मिनिमा होगा वहीं पर विद रिस्पेक्ट टू फेज बात होगी, ठीक है। सेम यानी अगर 30 डिग्री के ऊपर आपके वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो वही 30 डिग्री फेज के लिहाज से वहां पर करंट की भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है इन फेज। अगर हम इसको बात कर लें रियल और इमेजिनरी टर्म में तो वोल्टेज और करंट दोनों जो है वो रियल हमारे पास वैल्यू दे रहे हैं। इस तरह की डिस्कशन हमने रजिस्टर के बारे में की। इसके बाद हमने कहा कि अच्छा यही काम अगर रजिस्टर की बजाय आपका इंडक्टर आ जाए ठीक, जिसका एक्सप्रेशन हमने क्या ड्रा किया था टाइम डोमेन में, क्या एक्सप्रेशन था टाइम डोमेन में, क्या एक्सप्रेशन था वोल्टेज और करंट का इंडक्टर के लिए V इक्वल टू वेरी गुड, V इक्वल टू वेरी गुड। ये अहमद बता रहा था ना और क्लास में एक ही अहमद है, लेट हिम, ओके। लेकिन अगर हम इसकी फेजर फॉर्म देख लें ओके, लास्ट में इंडक्टर कर लिया तो वैसे अगर यही वाला रूटीन यूज करते हुए ये जो हमने आपको रजिस्टर की बात की, अगर हम इंडक्टर को भी देखना चाहिए तो हम ये देख सकते हैं, हमने लास्ट टाइम ऑब्जर्व किया रूटीन में कि इस इंडक्टर में फ्लो करता हुआ वोल्टेज और करंट अनलाइक द वोल्टेज एंड करंट इन दिस रजिस्टर आउट ऑफ फेज, यानी कि जिस जगह पर वोल्टेज का मैक्सिमा था वहां पर करंट का मिनिमा, फेज के लिहाज से डिस्कशन हो रही है। फ्रीक्वेंसी और टाइम को हमने वो हमने कांस्टेंट रख दिया है, ठीक है, यानी कि जो वोल्टेज और करंट है ये सेम फ्रीक्वेंसी रखते होंगे और जिस टाइम इंस्टेंट के ऊपर आप बात कर रहे हैं वो भी दोनों की सेम देख रहे हैं। उस वक्त जो तीसरा पैरामीटर है आपके सर्किट में वो इज दैट, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये था 4 टाइम्स साइन ऑफ, तो आपका सिग्नल जो है वो अगर आप साइनसॉइड की बात करें तो इन 3 चीजों पर डिपेंड करता है। हमने 2 चीजों को कांस्टेंट रख के तीसरी चीज के लिहाज से हम डिस्कशन कर रहे हैं फेज, फेजर सिस्टम। तो ये आउट ऑफ फेज है, आउट ऑफ फेज में भी कौन सा लीड कर रहा है कौन सा लैग कर रहा है, जो हमसे रेलेवेंट था उनकी वोल्टेज इज लीडिंग, ठीक है। वोल्टेज पहले फेज के लिहाज से प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बाद करंट प्रोड्यूस हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू फेज डिस्कशन हो रही है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये लास्ट टाइम हमने डिटेल में देखा। अगर हम इसकी रियल मेजरिंग की बात करें तो हमने ये बात देखी कि जो करंट है दैट इज अ रियल क्वांटिटी, लेकिन इस करंट की वजह से जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है वो एक इमेजिनरी क्वांटिटी। तो अगर मुझे रियल और इमेजिनरी एक्सिस की कहानी चलाना तो हम क्या कह रहे हैं, हम किस तरह से इसको रियल इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं कि करंट रियल, वोल्टेज इमेजिनरी, और अगर आपका कुछ फेज भी डिफरेंस है, इन दोनों के दरमियान जो फेज का डिफरेंस है यहाँ पर नहीं था, तो जिस तरफ वोल्टेज था उसी तरफ करंट था। This is the phase, ये वाला पार्ट, ठीक है। यस सर, 80 90 जितना भी इन दोनों का फेज का डिफरेंस, ओके। यस सर।
यहाँ तक डिस्कशन थी इंडक्टर कैपेसिटर आइडिया था हमारे पास, टाइम खत्म हो गया था। अगर यही चीज कैपेसिटर के लिए आपको सुनाना है। कामन कैपेसिटर का वोल्टेज करंट का रिलेशन I of t, सॉरी I of t, I of t is equal to C dV. गुड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर ओके। और इसी चीज को आपको फेजर डोमेन में सामने लिखना पड़े तो हमने सिंपल सी बात की थी कि जो टाइम डोमेन का फंक्शन है इसके लिए आपको j ओमेगा लिख देना चाहिए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके लिए रहना चाहिए एक्सपोनेंशियल ऑफ j ओमेगा t एक टर्म साथ साथ चलती है। वो क्या डिस्कशन आप देख सकते हैं। ओके जी यहां पर इसकी उलट करानी चाहिए। वोल्टेज और करंट अगेन आउट ऑफ फेज, ये एयोटा जो है एक्सपोनेंशियल ऑफ j90 एक्सपोनेंशियल एयोटा 90 ये बात निशान कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वोल्टेज रियल और उस वोल्टेज की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। अगेन दे आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज। किस तरह से, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी को इस्तेमाल करते हुए ये ब्लू वाले से डिजाइन करना चाहूं तो करंट पहले और उसके बाद उस करंट की वजह से जो कैपेसिटर में वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है 20 डिग्री, ओके, वो फिर वोल्टेज बाद इसे प्लॉट्स जहां पर जो फ्रीक्वेंसी हम नहीं मेंशन कर रहे, जस्ट फिलहाल लीड और लैग, ओके। इसको लेबल नहीं कर रहा ना, जस्ट रिवाइज जो कर रहा हूं मैं लास्ट में ओके जी। लीड लैग के बाद रियल और इमेजिनरी की अगर बात करें तो कैपेसिटर में वोल्टेज रियल, लेकिन उस वोल्टेज की वजह से प्रोड्यूस होने वाला करंट जो है इमेजिनरी। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सो ये मेरा आपका है स्मॉल वोल्टेज, और ये फीड जितना भी ये फेज, ओके। एक चीज जिसको हम ईएमटी में जाकर बेटर कैरी करेंगे वहां पर भी, लेकिन यहाँ पर हमें ये बात नजर आ जानी चाहिए। इंडक्टर जो है वो एनर्जी स्टोर करने का डिवाइस है और कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करने का डिवाइस है। क्या ये दोनों एक जैसी एनर्जी को स्टोर करते हैं? गुड, कामरान इधर देखो। इंडक्टर जो है वो किस फॉर्म की एनर्जी स्टोर करता है? मैग्नेटिक एनर्जी को, ठीक है, व्हिच इज रिलेटेड टू द करंट। तो इंडक्टर में करंट जो है वो रियल एक्सिस में होगा, ठीक। कैपेसिटर में कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर करता है किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड टू द वोल्टेज। इसका थोड़ा सा ग्लिम्स, आप थोड़ा सा आइडिया इनके जो फंडामेंटल जो इक्वेशन थी, Q = CV, यहाँ पे EMF की जो थी स्पेशल क्या था बोला, Li इंडक्टर और करंट EMF, वो जो फी का एक्सप्रेशन एक आपने पढ़ा था, अपन क्वेश्चन वो भी हम फेस के लिए आप पढ़ा, वहां से भी आप इस बात का आइडिया ले सकते। यहाँ पर वोल्टेज जो है वो रियल है और करंट जो है वो इमेजिनरी। इसकी डेप्थ में हम
बताएंगे। फिलहाल ये वो सिचुएशन बनती है जो कि हमें फेजर फॉर्म में इन एक्सप्रेशंस की वजह से ठीक। फेजर फॉर्म में अगर आप किसी सर्किट को ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसके अंदर रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड है, ओके, तो करंट और वोल्टेज का रिलेशन रेजिस्टर के लिए सेम, तो हम इसका V इक्वल टू IR में बात करें। इंडक्टर के लिए V इक्वल टू J ओमेगा Li और कैपेसिटर के लिए I इक्वल टू J ओमेगा C भी अभी C जो भी आपने याद, ओके। यहाँ से यहाँ तक की डिस्कशन हमारे लास्ट टॉपिक की, जिसके अंदर ये चीजें रहती हैं। आज का हमारा टॉपिक इसी की कंटिन्यूटी में इम्पीडेंसेस, एडमिटेंसेस, ये क्या होते हैं हम डिस्कस कर देना। ओके, इससे पहले जब टाइम डोमेन के डिस्कशंस कर रहे थे तो रेजिस्टर की तो बहुत मेहरबानी थी कि वोल्टेज और रिलेशन का वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन था वो लीनियर फॉर्म में नजर आ रहा, ठीक है, और इसको हम अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ के I इक्वल टू V और R या R इक्वल टू V और I अगर फेजर में बात करें तो, लेकिन ये वाली सहूलत यहाँ और यहाँ पर मुयस्सर नहीं है। साले की बात समझ आ रही? ठीक है, अब हम नई बात कर रहे हैं कि आपसे रिलेटेड है, डोंट वरी कि पहले लेक्चर में आएगा, ठीक है, इसका अभी पिछले लेक्चर से वैसा लेना देना, ओके। नया टॉपिक यहाँ पर अगर तो आपको करंट की वैल्यू दी गई है टाइम डोमेन में, अगर आपको करंट की वैल्यू गिवन है, आप उसका डेरिवेटिव लें तो वोल्टेज निकल आएगा। लेकिन जब आपको वोल्टेज की वैल्यू गिवन है और करंट आपको फाइंड आउट करना है तो वो इसकी तरह का देंगे कि अपनी मर्जी से ओमेटर यू हैव इंटीग्रल, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ ऐसे था, बट अगेन थैंक्स फॉर फेजर्स। अब अगर आपको करंट फाइंड आउट करना है और वोल्टेज गिवन है, वेरी गुड, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब आपको कोई ऑपरेटर तंग नहीं करेगा डेरिवेटिव का या इंटीग्रेशन का कि आप उसको पहले उस फॉर्म के अंदर लेके आए, ठीक है। ये मतलब आपके पास स्ट्रेट फॉर्म थी ना, अब आपको V ओवर L करना है, फिर इंटीग्रल करना है, फिर स्पेशल निकालना है, तो फिर उस स्पेशल को सॉल्व करना है। यहाँ पर कोई ऐसी तंगी नहीं। तो जो हमने एक स्टैटिक लेक्चर के अंदर अपना क्लेम किया था कि फेजर्स को यूज करेंगे तो आपकी एनालिसिस, आपकी कैलकुलेशन, मैथमेटिकल जो हेक्टिक कैलकुलेशंस थी, ऑपरेटर्स की डिस्कशन थी, वो नहीं हुई, ओके। तो इसके अंदर लास्ट एग्जांपल के अंदर हमने उसका डेमो भी दिया और अभी हम आगे चलते जा रहे हैं। सो ये एक आसानी यहाँ पर इन एक्सप्रेशन के साथ हमारे पास इस आसानी को इस्तेमाल करते हुए अगर हम यहाँ पर वोल्टेज और करंट की रेशियो निकालते हैं तो वो हमारे लिए आसान है। वोल्टेज और वन ओवर ये ओके। अब मुकाबला जो है वो बराबरी की सतह पर नजर आ रहा है। तीनों कंपोनेंट्स फ्रीक्वेंसी डोमेन में, फेजर में V over I, V over I, V over R,
ओके, यहाँ पर मुकाबला बराबरी से तो नहीं होगा, टाइम टू मेड काइंड ऑफ एट इनिशियल लेवल। अब यहाँ पर आपके पास एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की जाए। इससे पहले आपके पास जो पोजीशन किसी सिग्नल को, डीसी सिग्नल, किसी सिग्नल को फ्लो करते हुए रेजिस्टर प्रोड्यूस कर रहा था, उसको आप रेजिस्टेंस कह रहे थे। तो जो रेजिस्टिव सर्किट्स थे वहां तक तो बात क्यों थी, यानी कि आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर रेजिस्टर्स लगे हुए, लेकिन जब उस सर्किट के अंदर आपका इंडक्टर और कैपेसिटर भी लग गया, आरएलसी सर्किट आपका, जो ओवरऑल मुज़ाहमत अपोजिशन सिग्नल को फ्लो करते हुए फील हो रही है, अभी तक उसकी डिस्कशन आपने इस चीज में नहीं की। अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो ये जो वोल्टेज और करंट की रेशियो है किसी भी कंपोनेंट, अब हम किसी भी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, किसी में रेजिस्टर की बात, इसको हम कहते हैं इंपीडेंस। आज का हमारा जो टॉपिक है, उसको हम जी से मैं आपकी बात समझ आ रही है? कामन लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। ओके, सो जी जी तुम तो मर्जी नहीं दे सकते हो। जो सा मर्जी मतलब एक्स या मैं समझा नहीं। एक्स भी दे सकते हैं। अब फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये जी का सिंबल इंपीडेंस के लिए उन्होंने रख दिया, ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल सी का सिंबल कैपेसिटर के लिए, ठीक है। तो ये काम जिन लोगों ने इजाद किया या जिन लोगों ने इसको किया उनके ऊपर था, तो मैंने सिंबल दे दिया। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको इन्वेंट कर रहे हैं या कर लेते उस वक्त, ठीक है, क्या नाम था अपना? हाँ मुनीजा, अगर आप ये इंपीडेंस की बात कर रहे थे तो अब आपके ऊपर था कि आप इसको x कह दें या m फॉर मुनीजा, ऐसे ही है ना। हेनरी से h नाम था, वॉट, कॉलम, ठीक है। तो अगर मुनज़्ज़र मुनीजा की मुनज़्ज़र, हाँ मुनीजा, तो अगर मुनीजा आप इसको इन्वेंट कर लेती, डिस्कवर कर लेती कि ये प्रॉपर्टी फेजर्स की वजह से एनालिटिकल पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, और हम इस प्रॉपर्टी को m कह रहे हैं, x कह रहे हैं। ओके गुड, आई थिंक जिस x की बात आप बात कर रही हैं उनकी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ तक बात कि अब चूंकि v और i की रेशियो तीनों कंपोनेंट्स के अंदर निकल आई, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको नई टर्म, द टर्म z इंपीडेंस, क्या चीज ज़हन में क्या आती है इंपीडेंस से बात? गुड, लेकिन ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया वर्ड, ये ऑलरेडी एक काम के लिए फिक्स रेजिस्टर के लिए, रेजिस्टर, हाँ, इस कंपोनेंट में, रेजिस्टर में जब कोई सिग्नल फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, उसको जो ऑपोजिशन फील होगी उसको आपने रेजिस्टेंस के नाम से याद किया होगा। तो अपनी अभी भी ज़हन में याद रखने के लिए दैट इज गुड, लेकिन जुबान से जब आप टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, हमने टेक्निकल लैंग्वेज के इस्तेमाल पर जोर दिया अभी तक नहीं? अभी नहीं दिया, तो बिल्कुल स्टार्ट, ठीक है। You are supposed, you are requested to use technical language in your daily routine. Okay, उसके फायदे वगैरह हम डिस्कस करते रहेंगे, फिलहाल हम टॉपिक से डाइवर्ट ना। सो जब आप अपने ज़हन में कॉन्सेप्ट बना रहे हैं या जब आप जुबान से बोल रहे हैं कि इंपीडेंस क्या है, तो इट्स बेटर कि आप ऑपोजिशन का वर्ड ही इस्तेमाल करें। रेजिस्टेंस आपके ज़हन के स्केच के लिए, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए बात ठीक, लेकिन वो टेक्निकली वर्ड एसोसिएट है किसी और। सो वो ऑपोजिशन जो एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टेंस, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर कनेक्टेड हो, आरएलसी, आरएल, आरसी,
इस तरह के सर्किट जो ऑपोजिशन ऑफर करेंगे आपके सिग्नल के फ्लो को, उस ऑपोजिशन को हम टेक्निकली इम्पीडेंस कहते हैं और सिंबल है जी। मिसाल के तौर पर वो इम्पीडेंस आपका रेजिस्टर प्रोवाइड कर रहा है, वोल्टेज और करंट की रेशो आपको बता देगी कि कितनी ऑपोजिशन। वो ऑपोजिशन आपका इंडक्टर ऑफर कर रहा है तो जे ओमेगा है इंडक्टर की वैल्यू, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी और ये वो इंपीडेंस अगर आपका कैपेसिटर ऑफर कर रहा है 1 ओवर जे ओमेगा सी या ओके मैं ये तो मैं पूछने लगा था यार, कम ऑन तो मैं ये कैसे हो गया? ओके आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू यार वो मैं यस दैट लेट मी उसकी क्रिएटिविटी का प्रोसेस ना देखो तो मैं आयोटा स्क्वायर -1 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 की स्क्वायर दैट इज हां ठीक है थिंक ऑन माइनस देखिए आयोटा इज इक्वल टू व्हाट यू आर सेइंग अर्लियर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल हां स्क्वायर रूट ऑफ -1 वेरी गुड। सो आयोटा स्क्वायर कितना हो गया? स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट हाँ आयोटा स्क्वायर कितना होगा फिर? ओके कागज पेंसिल इस्तेमाल करना चाहो। आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इसमें -1 जी। सो आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 देन आयोटा इज इक्वल टू -1 उलट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ओके। सो इफ आई यूज टू मल्टीप्लाई आयोटा उनका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर ओके आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा नेगेटिव and that's okay. So these are the impedances individually offered by the passive electric components, passive electric okay. मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मैस हो गया इसको ज़रा थोड़ा लीव करना। अब हम इन डिस्कशन अब हम इम्पीडेंस के थोड़े से ज़रा जाते हुए करतब देखते हैं okay. If you are Kamran ready? Sure? Yes. हाँ श्या भाई ठीक चल रहे हैं? Yes. कहाँ तक पहुँच गए? इम्पीडेंस तक पहुँच गए? Yes. ओके। कोई अगर कहीं पीछे रह गया है या कोई बात समझ नहीं आई, कोई बात कंफ्यूज कर रही है तो प्लीज अभी हम उसको देखेंगे। So voltage और करंट की जो रेशो है एज ओहम से वो अब ट्रू हो रही है फेजर्स के इस्तेमाल की वजह से इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए भी, और अब वो रेजिस्टर नहीं अब वो इम्पीडेंस हो गया। और फिर जनाब अभी फिलहाल ओके ओके। हम देखते हैं कि एसी सिग्नल की वजह से फ्रीक्वेंसी की वजह से ये जो आपके कंपोनेंट्स हैं ऐसे कंपोनेंट्स ये कैसा बिहेव करता है? इससे पहले क्या आप मुझे याद करवाएंगे कि डीसी के लिए ये लोग कैसे बिहेव करते थे?
बोलो अहमद, कैपेसिटर जो होता है शाबाश। तो जो इंडक्टर जो होता है वो ओपन से कनेक्ट होता है डीसी मशीन। ओके, डीसी सर्किट अगर हो, डीसी सिग्नल ऑपरेटेड सर्किट अगर हो, तो उसमें इंडक्टर एज एन ओपन से ओके और कैपेसिटर एज एन शॉर्ट से शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। बस ठीक कह रही है, क्या कह रही है? ओके, होता है, आइडिया है, इससे पहले किया होगा आपने PCA 1 में जब आपने RLC सर्किट सॉल्व किए थे। ओके, इंडक्टर एज अ ओके फॉर डीसी अवेस इंडक्टर बिहेव्स एज अ ओपन सर्किट शॉर्ट नहीं है, अहमद कह रहे हैं कि चलो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होता है, कैपेसिटर ओपन सर्किट होता बाकी किसी और से आने वाले थे कुछ तो बाद में पूछना होगा। है। नाम लिया मैं यस सर। क्या कह सर? इंडक्टर शॉर्ट सर्किट। इंडक्टर एज अ शॉर्ट नहीं कॉमन, शॉर्ट सर्किट इंडक्टर ओपन सर्किट ये कंफर्म है क्या? वैसे ये सब लोग कह रहे हैं जमहूरियत पक्की बात है। जमहूरियत सर पता नहीं है। पता नहीं है? इब्राहिम अच्छा, अगर उसके रीजंस में जाता है फिर ज़्यादा अप्लाइंग करेंगे। तो साले क्या ख्याल है, कुछ याद है जरा जरा? ये ऐसा सर्किट आपने सॉल्व किया भाई, इस प्रॉपर्टी की यूज करते हुए आपने सर्किट सॉल्व किया, ये बात याद है? यस सर। ओके चलिए, दैट्स ओके। तो इंडक्टर एज अ साले का कह रहे हो? मुझे भूल गया। इंडक्टर शॉर्ट सर्किट का फिर क्या भैया क्या क्या फैसला करेंगे? इंडक्टर शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर। ये याद था, याद है या वैसे ही सब लोग क्या रिवाइज होगी ये वाली बात? नहीं, सर्किट सॉल्व किए थे। Yes. सो 5th चैप्टर ऑनवर्ड शुरू हो गया। अभी 2-3 चैप्टर्स लिए हुई प्रॉपर्टी। सर इंडक्टर की करेगा शॉर्ट सर्किट होगा क्योंकि सर करंट पे ये डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है और इससे सर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है सर, जो मैग्नेटिक जो भी है ये याद क्यों किया। करंट क्यों भाई? रीजनिंग पे जा रहे हैं। कैपेसिटर कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसकी वजह से सब ये होता है ओपन सर्किट। ओके, कैपेसिटर एज एन ओपन सर्किट और इंडक्टर एज अ शॉर्ट वायर के तौर पर बिहेव करता है अगर किसी सर्किट में डीसी सिग्नल ऑपरेट कर रहा है। सिंपल सा इसको करेंगे। ठीक है, तो इस बात के मुताबिक जो आपके सर्किट बनेगा ठीक है कि नहीं? अब फिर इसके बाद आप इंडक्टर में से फ्लो करता हुआ करंट या कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज निकाल रहे थे। मुझे बिलीव है कि ये काम आप लोगों ने किया हुआ है, जस्ट टॉप ऑफ द माइंड है, डिवाइस हल्का सा करेंगे तो आपको ओके। सो हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले जो डिस्कशन कर रहे थे वो थी इम्पीडेंस की, इम्पीडेंस ऑफ रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर and their behavior
विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। और उसको स्टार्ट करने से पहले हमने रिवाइज ये किया कि जो डीसी था वहां पर इंडक्टर एज अ शॉर्ट वायर और कैपेसिटर एज अ ओपन सर्किट, उसकी डीसी सारी हमने देख ली, रिवाइज की। ओके, चले हम अब यहाँ पर अगर हम फॉर एग्जांपल इंडक्टर की डिस्कशन, इट्स एन कांस्टेंट जो था जिसकी वैल्यू मैं बता रहे थे व्हाटसोएवर, वेरी गुड। ये इंडक्टर है, उस कंपोनेंट की प्रॉपर्टी के लिहाज से उसका नंबर 1, और ये वो चीज है जो कि आपके पास सर्किट में आपके किताब में देनी चाहिए। एक सर्किट आपने ऑलरेडी लगा लिया, ठीक है, तो आप उसकी रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस यूज नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल, लेकिन फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये भी आता है। तो इसके लिहाज से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज बहुत लो फ्रीक्वेंसी की बात है, ओमेगा इक्वल टू 0। सो इंडक्टर के केस में जी, इंडक्टर के केस में इंपेडेंस क्या होगी? वही सर्किट, सोर्स, और ये सोर्स जो सिग्नल आपके सर्किट में फ्लो करवा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 0। तो आपका जो इंडक्टर है इसकी इंपेडेंस कितनी होगी? यानी कि ये कंपोनेंट इस फ्रीक्वेंसी पर सर्किट को कोई मुज़ाहमत नहीं, कोई ऑपोजिशन नहीं, फोर्स, यानी कि यहाँ पर है या नहीं है, ये यहाँ पर मौजूद है, इसके लिए पर एक वायर कनेक्टेड है, ये होगी ना बात। इंपेडेंस अगर 0 है, इट्स बिहेविंग लाइक अ शॉर्ट वायर। आपने जो शॉर्ट वायर TECA1 में जब आपने उसको देखा कि शॉर्ट सर्किट का कांसेप्ट जब आप लोगों ने देखा था V इक्वल टू IR की यूज, जब आपने रेजिस्टिविटी और रेजिस्टर को डिस्कस किया, तो वहां पर यही हमने चीज देखी कि ये इंतहाई अमीन और सादिक कंपोनेंट है शॉर्ट वायर, कि जितना कुछ इसको अपने एक एंड से मिलता है वो बगैर किसी अमेंडमेंट के दूसरी तरफ ले जाते। यहाँ पर यही अपने ब्रेडबोर्ड के ऊपर वायर्स क्यों कनेक्ट करते हैं? ये दोनों एक ही नोड, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल यहाँ पर वही यहाँ पर, जितने करंट के कैरियर्स चार्जेस यहाँ थे वो सारे के सारे उठा के तार यहाँ पर लगी। इन कंपोनेंट्स की तरह इस तार में जो कि शॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल हुई, कुछ अपने पास नहीं, ऐसे ही शॉर्ट, इंपेडेंस 0, रेजिस्टेंस उस वक्त की रेजिस्टेंस और आज की, अच्छा जी, और कैपेसिटर को अगर मैं देखूं, फ्रीक्वेंसी 1/0, इंफिनिटी, इंपेडेंस यानी कि लो फ्रीक्वेंसीज पर ये कंपोनेंट बिल्कुल वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा लो फ्रीक्वेंसीज की भी डिस्कशन है कि लो फ्रीक्वेंसी आप किस चीज से करें, कोई भी लो फ्रीक्वेंसी के नाम की बजाय ओमेगा इज इक्वल टू 0 करना है, लेकिन आप टेक्निकल लाइफ में जो आप एक्सपेंड आगे जाएंगे तो फिर आपको ये assumptions देना होंगी कि अच्छा ये लो फ्रीक्वेंसी पर है तो इसको इस तरह से एज्यूम करके इसकी ये प्रॉपर्टी कैश करेंगे। ओके, खैर ये बात आपके फॉर फ्यूचर या हमारे नियर फ्यूचर से रिलेटेड, लेकिन ये बात लो फ्रीक्वेंसी के लिहाज से आप नीचे ये फिर हम बात करते हैं कि 0। ओके जी, अनलाइक दिस अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी कर सकता हूँ
बहुत है, हाई फ्रीक्वेंसी, इन्फिनिटी। यहाँ पर तो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, तो रजिस्टर डीसी, एसी, हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी एक ही जैसा बिहेव करता है। ठीक है, जो मसाइल पेश हो रहे हैं वो इंडक्टर और कैपेसिटर कि ये इस सिचुएशन में कैसा बिहेव करता है। डीसी का आपने बताया, एसी में दो फ्रीक्वेंसीज का आपने देख लिया, और हम डिस्कस करने लगे कि अगर एसी में हाई फ्रीक्वेंसी हो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, तो नंबर 1 इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा। इंडक्टर की जो वैल्यू अब ये वही इंडक्टर जो कि उसी मैग्नीट्यूड के सिग्नल के लिए शॉर्ट वायर के तौर पे बिहेव कर रहा था, अब वो एज एन ओपन कामन बात समझ आ रही? कागज से था दिल पे भी लिख लो, ओके? वो फिर याद रहेगी आसानी से। सिमिलरली आपका जो कैपेसिटर है 1/1 infinity is equal to 0. ये सब कुछ किताब में बहुत नीट करके लिखा हुआ है, ठीक है? तो जब आप वापस आके किताब को खोलेंगे तो आपको सारा कुछ टेबल के सामने मिलेगा, तो निशान लिखने की या ये जो है ना ये एरोस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। वही कैपेसिटर जो डीसी या लो फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 0 के लिए एज एन ओपन सर्किट बिहेव कर रहा था, अगर आपने किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हाई कर दी तो ये शॉर्ट वायर है। So components are dependent on the frequency. Agreed? Yes. Are matter of frequency. ये सिग्नल जो सिग्नल यहाँ पे था, चलिए और नंबर वोल्टेज था, और ये जनाब हो गया 12 cosine of 50t plus जैसे ही आपसे सिग्नल फ्लो करवाया तो फेज की कहानियां जो पहले हमने देखी, यहाँ पर वोल्टेज भी फ्लो करेगा, सॉरी वोल्टेज भी इसके अक्रॉस डेवलप होगा और करंट भी फ्लो करेगा, उसका फेज डिफरेंट होगा, जो भी होगा वो पहले हम देख रहे थे, ठीक है जी? वोल्टेज लीड करेगा या रियल एक्सिस पे आएगा, यहाँ पर करंट लीड करेगा या रियल एक्सिस पे आएगा, वो सारी कहानियां इस 90 डिग्री से फेज की तरफ। ओके, इंपेडेंस का मसला इस 50 से ओमेगा से, ठीक है? अगर ये 50 की बजाय 500 हो जाता है या 50 की बजाय 1 हो जाता है तो सेम कंपोनेंट आपका किस तरह से बिहेव करेगा ये डिस्कशन करेंगे। सवाल कुछ बात समझ आई भाई? आज के लेक्चर का पिछले लेक्चर से लेना देना नहीं है, तो इसलिए ये नहीं सोचना कि मेरे पिछला लेक्चर करना क्या। ओके, अभी तक की जो बात हमने देखी है आज के लेक्चर में, जो आज के दिन याद रखने वाली बात है वो ये कि इंडक्टर at high frequencies behave like a capacitor in DC and vice versa. इंडक्टर हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ओपन, जो कि डीसी के लिए कैपेसिटर था, और कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी के लिए शॉर्ट, जो कि लो फ्रीक्वेंसीज या डीसी के लिए इंडक्टर। ओके, Yes, sir.
ओके, अभी अभी इसकी कहानी चल रही है यार, क्लास में आप जल्दी आ जाए ना। अच्छा, अगर मैं इसी चीज को पार्टीशन और फेजर में अगर मैं इसको एक्सप्रेशन को लिखना चाहूँ, इम्पीडेंस जनरली रिगार्डलेस ऑफ कंपोनेंट, इम्पीडेंस जो है वो आपकी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। ये जी है वो कॉम्प्लेक्स वाला थिंग नहीं है जो पहले हम उसका c इक्वल टू x प्लस एटा y वाला नहीं, ये इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस जो है वो आपकी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। कॉम्प्लेक्स मींस इसका रियल पार्ट भी है, इसका तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसका रियल पार्ट कौन सा कंपोनेंट होगा और इमेजिनरी कौन सा? सवाल है क्या नाम है? इकरा, क्या सोचती हैं आप कि अगर ये इम्पीडेंस एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, यानी कि इसका कुछ रियल पार्ट भी है और इसका कुछ इमेजिनरी पार्ट भी है, ठीक, और ये सर्किट में कंपोनेंट्स लगे हुए किसी भी कॉम्बिनेशन में, तो कौन सा कंपोनेंट रियल पार्ट और कौन सा कंपोनेंट इमेजिनरी पार्ट के लिए कंट्रीब्यूट करेगा? The answer is on the board. लेफ्ट हैंड रेस्ट, इसके बाद तुम्हारी बारी है अहमद। ओके, सॉरी, जवाब भैया बोर्ड पर लिखा हुआ, पेपर पहले से आउट हो गया। सिर्फ हमें ये बताना है कि जिसमें आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था x प्लस jy, इसमें कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो कि रियल पार्ट, आपको ये पता है कि ये वाला रियल है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट है? जी बताइए जरा। The answer is on the board. रेजिस्टर जो है वो रियल है और इंडक्टर और कैपेसिटर इमेजिनरी। ओके, हाँ भाई, कौन सा कंपोनेंट रियल पार्ट के लिए और कौन सा कंपोनेंट रेजिस्टर रियल है? रेजिस्टर रियल में आएगा। ओके ओके, एग्री करते हैं आप? क्यों रीजन है तो वेरी गुड। इस रेजिस्टर की जो इंपीडेंस है दैट्स अ रियल नंबर 5 10 ओम। अच्छा ये सॉरी मैं स्किप कर दिया, इंपीडेंस का यूनिट भी ओम है, और जो हम बाकी इसके पार्ट्स की बातें कर रहे हैं उनका लेकिन रेजिस्टेंस जो कि रियल पार्ट को जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं ये इमेजिनरी नंबर आ रहा है, इसीलिए आपकी जो कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस है, अगर आप उसको पार्टीशन कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो इंडक्टर या कैपेसिटर के हैं। ओके, अब यहाँ पर रेजिस्टर, जनरली जब हमने फॉर्मुलेशन करनी है तो यहाँ पर हम क्या लिखें, इंडक्टर का लिखें या कैपेसिटर का लिखें? तो उन्होंने जनरली एक वर्ड x, ये जो वो शायद वो वाला x, ठीक है। जब आपने इंडक्टर या कैपेसिटर की इंपीडेंस को जो सर्किट में मौजूद है मेंशन करना है तो वो x, जिसको हम रिएक्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ओके ठीक है नहीं? इंपीडेंस तो अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिख रहे हैं तो इसको अगर हम देख चलो, अगर आपके पास सर्किट के अंदर है ही सिर्फ कैपेसिटर और इंडक्टर, ओके सॉरी इंडक्टर और रेजिस्टर सिर्फ है, या अगर आपके पास सर्किट के अंदर है ही सिर्फ कैपेसिटर और रेजिस्टर, ठीक है, x इज बराबर ओमेगा, ये लिखना चाहिए, और x इज ओमेगा है, ओके ओके जी। प्लस और माइनस से अगली कहानी शुरू होगी।
अगर आपको ये दिया जाए कि जनाब एक रेजिस्टर, एक सर्किट जिसकी इंपीडेंस है 5 + 2J, अगर आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि जनाब ये एक सर्किट है जिसकी इंपीडेंस, टोटल इंपीडेंस ये है, या दो कंपोनेंट्स मैंने मिक्स किए और इनकी इंपीडेंस ये है, तो इस प्लस से आप ये गेस कर रहे हैं कि ये जो इमेजिनरी पार्ट है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 हेनरी का इंडक्टर लगा है। हाँ भाई, ठीक है, बात पहुंची है ना कि नहीं? यस सर। ऑन द अदर हैंड 5 - 2 होगा 2J। अब यहां से आपको ये आइडिया हो रहा है कि ये जो इंपीडेंस दी गई है, ये आपको कैपेसिटर नहीं काशिफ शायद, सॉरी, ठीक है। ये जो है इसको हम इंडक्टिव लोड कहेंगे, इंडक्टिव इंपीडेंस, और इसको हम कैपेसिटिव लोड, ठीक। इंडक्टिव लोड में करंट लैग कर रहा हो, क्योंकि इंडक्टर में करंट लैग कर रहा है। कैपेसिटिव लोड में इंडक्टर लीड कर रहा, कैपेसिटर लीड कर रहा था, कैपेसिटर करंट लीड कर रहा था। कैपेसिटिव लोड को या कैपेसिटिव इंपीडेंस को लीडिंग इंपीडेंस, यानी किसी भी तरीके से आपको अटैक किया जाए कि लीडिंग इंपीडेंस है, तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर रेजिस्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है। आप कहते हैं लैगिंग इंपीडेंस है, लैगिंग लोड है, तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर इंडक्टर, क्यों, जो उनकी करंट की प्रॉपर्टी थी ना कि करंट इस कंपोनेंट में लीड कर रहा है, लैग स्टार्ट का पोर्शन आज तक, वहां से उन्होंने ये एसोसिएट कर दिया। अगेन उन्होंने टर्म्स एसोसिएट कर दिया, तो फिलहाल हम उसका कुछ कर नहीं सकते। टेक्निकल डिस्कशन हमारे द्वारा थोड़ी सी समझ आ रही है, ठीक है। तो हम फिलहाल हम उसी बात पे करते हैं क्योंकि उन्होंने कर दिया, ठीक है। फॉलो टॉम नेक्स्ट मीटिंग का काइंडली टाइम पर आए, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कशन